their darshan once the Ram Lala Murti is consecrated in the new Ram temple. It's been a struggle of 500 years to see the Ram temple being constructed at the very Ram Janmsthan where I am standing today. And it's been litigation of over 70 years to have this dream come true for over 80 crore Indians, but many more devotees across the world. The Ram temple is finally a reality. With that, it marks a seminal moment in Indian Indic civilization, because this is the first of those many struggles that has come to fruition when it comes to erasing the markers of invaders and reclaiming the rightful spot of Lord Ram for his temple. On January 22, 2024, the Prime Minister Narendra Modi will be coming here for the first big milestone as far as this Ram temple is concerned, which is the consecration ceremony. There is already a Ram Lala Virajman in a makeshift temple. Not just that Ram Lala, but a new Murti of Ram Lala will be consecrated at this Ram temple. From here on, those are the two Swarups of Ram Lala that will be prayed to by devotees. And from the very next day forward, the doors of the new Ram temple will be thrown open to thousands, possibly lakhs of devotees who are waiting very eagerly to do their first darshan. Today we have a very special guest, the chairman of the Ram Janmabhoomi Ram Temple Trust, Nipendra Mishra, joining us, who was entrusted the very difficult task to ensure that not just that the Ram temple is built with good deadlines in mind on time, but also that it is built to specifications of those concerned, of those in the know, and those who have the knowledge of how the Ram temple should be built. We'll speak to Nipendra Mishra, who will give us more information about not just the January 22 program, but also what to expect if you come next to the Ram temple. Barely a month or so to go, 2 months to go for the January 22 consecration program. The Prime Minister is expected to come here, and I'm guessing your work has increased quite a bit. Well, you are making me nervous because yes, it is true, it is just about 2 months or even less than that, because I suppose the arrangements would start after 15th, including puja for the consecration. Therefore, you can take it that we are just left with about 50 days. Now, let me give you first the what is going to happen on 22nd, and then we will go back that what is it that you are going to show to devotee. Right. On 22nd, the consecration takes place, which is right here. You walk straight, there is a sanctum sanctorum, we will have chance to go there. And there the program will start around 12 o'clock when the Prime Minister arrives. Of course, the guests will be here right in front where we are yes, right now. They will be there at the ground level. On the stairs that just below this level the stairs. as well. And this is the main entry of the This temple. is the main entry, and you are standing on the eastern gate, which is the entrance of the temple. And then of course the Prime Minister enters and he goes there for the prayer and the final about 2 hours of religious functions. Here you will find it of interest that the platforms that you see, these are the welcome platforms. Okay. And there will be 3 figures here. The first will be Singh, which is lion. So that Singadwar, so on one platform on both the sides. Right. So there are these 3 levels of these platforms. Yeah.
So there will be the lion on Yeah. one. Then there will be elephant. Elephant. So it is Gaj Dwar. So Singh Dwar, then Gaj Dwar, and then Hanumanji. Okay, okay. The other side also the Singh Dwar, the Gaj Dwar, and then Garunji. So they will be welcoming in a way, are blessing the devotees. Right. The devotees would come from this Parkota. Right. Parkota, for better understanding, is a place which is given to the devotee for parikrama. Right. So this construction will go round the temple Like a corridor. and it is about 795 meters going to be. This is not a simple corridor. There is a thought process to it. There is outer wall and the inner side it is open towards the temple. So anybody doing parikrama of course Can will be see seeing the temple. Yes. The outer wall provides in a way the safety, the security for the temple because no one then can enter. So in a way its all entry is blocked from all the fronts except the eastern entry here. Now on the wall which is being created, each wall is in the form of a panel. The panel will have a bronze mural. That mural is roughly about 6 feet by 4 feet. And what is going to be the story there, I am covering it right in the beginning so that one can understand the significance of Parkota. It will display the ethical values of Ram and how that became relevant to those who pursued it, those who adopted it, those who became the part and parcel of the thought process of Maryada Purushottam. Okay. So, and it covers such events, they are events obviously, and it will cover up to 1857. Oh, Yeah. okay. So, the murals will be all over and they are 100 in number. That work is being done separately. Now, I mean, you know, to the lay person, of course, it may just look a bronze mural, but what goes into it is, you have first the picture, then you give to the artist, then he has his own vision, his own view of how this picture should be now made in an art form. Once it is made in the art form, it gets approved by some topmost artists which we have engaged. Then it goes to the process of clay work, then fiber, then finally bronze. And then it comes here and gets installed. Absolutely. So And- that is that thing there. And the construction of this Parkota is actually more complex than the temple. Would that be fair to say? Well, it's costlier than the temple. Costlier than the temple. Yeah. May not be complex that much because the complexity we learned here. Later on, of course, that got repeated because whatever construction technology was adopted here has been adopted there. But just to get the idea, this eastern entrance gets connected immediately. There is a road which is called Ram Mandir Marg. So there is a road going and that opens to the main road. So we are talking about 800 meters of walk for the devotee, entering from this Parkota and then climbing up. So this in brief is how you will see on 23rd of January when the devotees in great number, I mean we are thinking about 1,25,000 every day, at least for 2 months, because you know the initial enthusiasm will be much will higher. be, and perhaps more people coming from other states Then even than, Uttar Pradesh. the So you are planning to open the doors of the Ram temple immediately the next day after the consecration? Oh, that's right. Yeah. For the reason, the darshan of Bhagwan cannot be stopped.
So at the moment there is a temporary place where the god is located. So he really comes here. From there, the Chal Murti, Utsav Murti, which is there at the moment, that Murti will come on that day, on 22nd. And then the Achal, which is being carved, the new Murti, that will be installed here. So after 22nd, the devotees naturally must have darshan. So 23rd You don't want is the them day. to wait till the entire construction is No. At the moment they are going there, they will definitely see. Want to come. Yeah, want to like to come when it is being the pran pratishtha or consecration has taken place. So प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पे होने वाली है 22 जनवरी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात नृपेंद्र मिश्रा जो बता रहे हैं वो ये है कि जो रामलला की अभी जो विराजमान मूर्ति है वो तो यहाँ आएगी ही, लेकिन उसके अलावा नई मूर्तियां भी बन रही हैं और मेरे ख्याल से 3 मूर्तियां बन रही हैं जिसमें से एक का सिलेक्शन होगा। तो ऐसा क्यों किया गया है कि 2 चीजें कि एक तो 3 मूर्तियां बनेगी फिर उसमें से एक का सिलेक्शन होगा और दूसरा कि वहां से तो मूर्ति आ ही रही है जो विराजमान है, लेकिन नई रामलला भी विराजमान होंगे। अच्छा, आप ये सभी को आपके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। 3 मूर्तियां तो इसलिए थी क्योंकि जो आर्ट वर्क बना कि भगवान कैसे दिखेंगे, जो उनको विवरण दिया गया कि किस प्रकार किस उम्र की उनकी मूर्ति होनी चाहिए, किस प्रकार की किस ऊंचाई की लंबाई की होनी चाहिए, समचरण होना चाहिए मतलब एक ही लेवल पे हो, फिर अजान बाहु होना चाहिए मतलब उनके हाथ जो हैं वो लंबे हैं टिल गोइंग टू द नी। सो ऑल दोज डिस्क्रिप्शंस व्हिच आर देयर इन द रामायण of Maharshi Valmiki and later Tulsidas ji, all that was picked up to describe. But then we could not have depended on one sculptor. Right. You wanted options. Yeah. So the selection will be made finally. Sometime the trust will decide that which of the 3, which is being carved here only, somewhere in Ayodhya. Yeah. Will then be selected for the pran pratishtha and that murti will come here. And what happens to the other 2? Honestly, trust has not yet decided. Okay. Maybe they can be consecrated in some other temples in Ayodhya. Well, it's a very, very, I would say, from the point of view of emotions, it's a very delicate question. Right. And people would like to know how, in what manner it will be utilized. There are options, but the trust has to finalize on those options and they will do it. So, मिश्रा जी, इससे पहले कि हम अंदर जाएं और मंदिर कितना भव्य है वो थोड़ा बहुत हम अपने दर्शकों को बताएं, हमें ये बताइए कि ये जो पूरा निर्माण हुआ है इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैसेट ये है कि इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। ये सारा पैसा दान से आया है और भक्तों ने दिया है। तो कितना अभी तक आया है ट्रस्ट के पास और कितना यूज हुआ है? सब दान है। किसी भी सरकार का, राज्य या केंद्र का कोई धनराशि इसमें इस्तेमाल या उपयोग नहीं हुई है। अभी 3,250 करोड़ रुपए लगभग डोनेशन के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन अब जो एक नई व्यवस्था, नया एक तरीके से रास्ता खुला है वो FCRA अकाउंट फॉरेन डोनेशंस के लिए। तो FCRA अकाउंट विदेशी लोग जो हमारे NRIs हैं उनका, तो मैं समझता हूँ उनके भी माध्यम से बहुत धनराशि आएगी। उन्हें बड़ा संतोष था कि उनको ये अवसर क्यों नहीं मिल रहा है कि वो भगवान के इस कार्य में भागीदार बने। तो अब वो भी ओपन कर दिया गया है। सो द कलेक्शन विल बी मेड। अब आप सोचिए ना, इसमें जो निर्माण है वो सिर्फ मंदिर और परकोटा नहीं है। यहाँ पर, यहाँ से 500 मीटर चलेंगे अंदर ही तो एक कुबेर टीला मिलेगा। कुबेर टीला बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ पर शिव का मंदिर है। बाकी जब कुबेर टीला देखा गया तो हर प्रकार के पौधे थे, पेड़ थे, एक तरीके से जंगल ना भी कहूँ तब भी एक घना एक तरीके से बोटैनिकल वो ग्रोथ थी वहाँ पर। शिव मंदिर के पास ही वहाँ जटायु इंस्टॉल किए जा रहे हैं।
और जटायु श्री जो हैं वहाँ से मंदिर की तरफ देखेंगे। अच्छा। हाँ, सो और वो ब्रॉन्ज के बनाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर निर्माण जो बाहर है उसमें 7 मंदिर बन रहे हैं जी, जो एक तरीके से सोशल हार्मनी का प्रतीक है जी। जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने वनवास में संदेश दिया था कि हर वर्ग समाज का, हर व्यक्ति वह उनके लिए उनका है। तो उस संदेश को और इस भारतीय संस्कृति को एक तरीके से एडॉप्ट करने के लिए उन मंदिरों की यहाँ पर व्यवस्था होगी। तो क्या क्या मंदिर बनेंगे? जिसमें महर्षि वाल्मीकि हैं, वशिष्ठ जी हैं, निषाद जी हैं, सबरी माँ हैं, अहिल्या जी हैं। तो इस प्रकार से 7 मंदिर का व्यवस्था की जा रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। आपने बताया ये जो परकोटा बन रहा है इसमें 1857 तक की म्यूरल बनेगी, तो 1857 का क्या दृश्य आप दिखाने वाले हैं उसमें? देखिए, इसमें दृश्य तो सारे भगवान से संबंधित हैं। हाँ जी। इवेंट्स भी उन्हीं से संबंधित जी, हैं। तो 1857 का हाँ, क्या लेकिन event है? इसलिए वो बड़ा अच्छा विचार किया गया। तो प्रश्न यह था कि यदि हम किसी एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु, हाँ, जो सेजेस कहलाते हैं, उनकी वहाँ पर हम म्यूरल बनाएं और उसकी कहानी कैप्शन में लिखें जी। तो, और फिर ये बताएं कि इनको हमने क्यों चुना जी। क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम से कहीं ना कहीं संबंध होना चाहिए जी। घटनाओं का संबंध होना चाहिए। तो यह प्रश्न था कि लोग फिर पूछेंगे कि आपने अमुक धार्मिक व्यक्ति को क्यों नहीं रखा। तो हमें एक डिस्क्लोजर करना पड़ा कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो 1857 तक ही किया है, उसके बाद का नहीं किया है। इसलिए यदि कोई बाद के लोग हैं, महापुरुष हैं या साधु समाज हैं या प्रतिनिधि हैं या जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, क्योंकि 500 वर्ष का यह भी कहलाता है आंदोलन, तो उससे पहले का करना था जी। तो हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज के साथ इस ब्रॉन्ज म्यूरल को करना चाहते थे। We didn't want anything controversial in the form of mural. Right. So we stopped at 1857. Okay. Yeah. So all of this complex, you're saying 3,200 crore rupees have been received. 3,250 crores. Yeah. And you will get much more now that foreign donations are allowed. But what would be the total cost? Because this is not just the temple, mind you, for the benefit of our viewers. There is of course a parikrama parkota going all around, and it's even costlier than the temple so far, right? बिल्कुल, इसका बिल्कुल। कितना अभी कॉस्ट आया? अगर अंदाजन इसका 700 करोड़ है, हाँ। तो परकोटा जो 795 फीट में होगा, हाँ। वह लगभग 900 करोड़ का है। बट ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बहुत बड़ा होने वाला है। ये 71 एकड़ में एक कॉम्प्लेक्स है। तो अगर लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जो कॉरिडोर देखा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये उससे बहुत गुना बड़ा होगा। तो इसकी कॉस्ट में फिर बहुत जी, ये इसमें एक तो देखिए भूमि की सीमा नहीं थी। काशी विश्वनाथ में भूमि की सीमा थी, दिक्कत थी। हाँ। और कुल मिलाकर के अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है, सब निर्माण कार्य लगभग 2000 करोड़ में जी पूरा होने की संभावना है। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करेगा क्या क्या जुड़ता है। ऑडिटोरियम की बात हो रही है जी, म्यूजियम की बात हो रही है जी, जी। ट्रस्ट ऑफिस होगा, गेस्ट हाउस होगा, और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो आपने देखा नहीं देखा तो आप कृपा करके वहाँ 1 मिनट रुक करके देख लें। वो है पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर जी, जहाँ पर कि लोगों को होल्डिंग करीब 5000 लोगों की स्पेस होगी, जहाँ पे लोग अपना सामान जमा कर सकेंगे और उसके बाद दर्शन के लिए आएंगे, और कुछ वहाँ पर अन्य सुविधाएं भी होंगी श्रद्धालुओं के लिए। तो वह भी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी, और वो 22 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। Oh, okay. So it's going to be ready. So a lot of preparation is being done, not just of the temple,
and what goes into making of a temple, but also the experience of the Shraddhalu and the experience of the devotees, quite like on the lines of Kashi Vishwanath that we have seen, that a lot of detail has been taken care of. So let's go inside the temple now, and Mishra sir will explain to us the intricacies of what the devotees are likely to see. First, of course, the Prime Minister and some of the seers are going to be coming on January 22nd. What is it that is going to be described, you know, to them? देखिए, यहाँ पे जब अब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो रफली टेम्पल का लंबाई जो है वो 390 फीट है जी। इसकी जो चौड़ाई है आयाम वो लगभग 300 फीट है। इसमें जब हम सीधे वॉक करते हैं तो सैंक्टम सैंक्टोरम के अलावा यहाँ पर 3 मंडप हैं, जो एक गुरु मंडप है, एक यहाँ पर रंग मंडप है जी, और एक यहाँ पर स्लिप हो रहा है, एक थर्ड मंडप है, और 2 साइड के मंडप मिलाकर के 5 हो जाते हैं जी। एक तरफ प्रार्थना मंडप होगा, एक तरफ नृत्य मंडप होगा। अच्छा। तो इस प्रकार से 5 मंडपों के उसमें आप वॉक करते हुए चलेंगे। ये पहला मंडप है। ये जो हम अब पहुंच रहे हैं, ये राम जन्मभूमि मंदिर का पहला मंडप है। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है जी। यहाँ पे जो पिलर्स की जो नक्काशी वगैरह है वो सब हो चुकी है, और ये भी जो इसकी गुम्बद भी है वो भी तैयार हो चुकी है। तो इसका भी कुछ ये रंग मंडप है। ये रंग मंडप है, सबसे पहला मंडप। जी हाँ। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है? जी, इसका एक तरीके से उल्लास जी। यू आर नाउ रीचिंग द स्टेज ऑफ what is called utmost happiness. Right. So you have now entered, and your only let's say ambition or inspiration or whatever, your devotional commitment is to have darshan. So you are, this is joy. Yeah. On coming into the temple and doing that. And all these names have come from the special हमारे आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मंदिरों के निर्माण की एक शैली थी, नागर शैली, उसके भी हैं, उन्होंने उसे एडॉप्ट करके इसका नाम दिया जी। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज आप देखेंगी, यू सी द पिलर्स, यस, एंड these are some of the sculptures that are there. बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें पिलर्स में बनाई गई हैं। ये इसका एक हिस्सा है जी, अपर मोस्ट जी। ये आप इस तरीके से समझें कि ये इनको हम नृत्यांगना नहीं कहते हैं जी। दे आर नॉट जस्ट डांसर्स, बट दे आर पावर, शक्ति। तो उसका है, ये वो हैं जो भगवान के अराइवल पर खुशियाँ मना रही हैं। जी जी। तो इसीलिए ये रंग मंडप है। हाँ, ये ऐसा ही, लेकिन ये जो पैटर्न है ये पूरे पिलर्स पे अडॉप्टेड है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी मिश्रा जी, क्योंकि इसका क्या कोई इस राम टेम्पल के लिए कोई टेम्पलेट तो नहीं रहा हुआ होगा, या कुछ ऐसा था हिस्टोरिकली जिससे अडॉप्ट की गई हैं कुछ चीज़ें कि ऐसा होना चाहिए जब राम टेम्पल बनेगा? तो मंदिरों की शैली तो वो आर्किटेक्ट महोदय ने अडॉप्ट किया पुस्तकों से जी, और उनका ही यह एक तरीके से योगदान है कि इतने मंडप होंगे, फिर फर्स्ट स्टोरी पे एक घटेगा, फिर 3 मंडप हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर 2 मंडप हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर शिखर होगा। तो एक तरीके से ये सब उनकी शैली का हिस्सा है जी, जो उन्होंने अडॉप्ट किया। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो वीजे हैं वो ज़रा दिखाएं कि इसकी जो पूरी गुम्बद है वो तैयार हो गई है और उस पर सारी नक्काशी हो चुकी है। ये फर्स्ट मंडप है राम टेम्पल का और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। कुछ कुछ मूर्तियाँ अभी भी बन रही हैं जिसकी शिल्पकारी अभी होगी, जैसे कि मेरे साथ में यहाँ पैटर्न बना हुआ है। कुछ कुछ अभी थोड़ा सा हो गया है, इसको पूरा नक्काशा नहीं गया है,
और थोड़ी सी बची है, तो ये सारा काम अभी ऑब्वियसली ख़त्म किया जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत काम बचा है यहाँ फर्स्ट मंडप में भी। और जाते जाते हमारे पास 3 आगे मंडप हैं और 2 साइड में मंडप हैं। ये जो आपने बहुत अच्छा किया, समझा दिया। जो कार्विंग है ये अभी इनको नकाशा जाएगा या आप चिजलिंग कहें, हाँ। वो करेंगे और उसके बाद फिर इसकी फाइनल टच होता है जिसमें कि ये स्वरूप फाइनल हो करके आएगा। ये 3 हैं, आपने बिल्कुल सही बताया कि पूरा नहीं है। थर्ड ये है जो अभी बनना है। ये फिक्स है, कौन सी मूर्ति आएगी ये सब तैयार है। मूर्ति की कार्विंग इसी पे होगी, इस पे ड्राइंग बनेगी और इस पे फिर पत्थर से काम होगा जी। लेकिन क्या होगा यहाँ मूर्ति वो ऑलरेडी तैयार है। तो सर ये जो मंदिर कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है ये डिफरेंट होता है, इसमें लोहा सीमेंट यूज़ नहीं होता, सिर्फ पत्थर से ये बनता है। तो ये पत्थर कहाँ से आया है, इसकी कुछ खास खासियत है जिस पत्थर से ये बनाया गया? जी, एक तो ये है कि जो पत्थर है ये तो ऊपर स्टोन का है, जो फाउंडेशन राफ्ट और प्लिंथ के बाद है। फाउंडेशन इसकी जो है वो 15 मीटर डीप है। फाउंडेशन डीप है और जिस प्रकार से बनाई गई वो आईआईटी चेन्नई ने रिकमेंड किया जी। और उसकी गुणवत्ता ये है, द स्पेसिफिकेशन कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए स्टोन। So that is the feature, and why it was necessary, not many may know that Saryu river was very close. So when the geologists surveyed it, they saw that maybe 1000 years or before there was some flow which was coming on this ground. Okay. So they took care that the soil of that has to be made stronger. So the soil was dug out and removed and then refilled with the engineered soil recommended by IIT Chennai. So overall, how many workers do you think have worked over the construction of this temple so far? Well, at the moment there are about 2,500 people who are working. Okay. At And I believe it's day and night construction. oh yes, yes. It's all 3 shifts. Oh yes, and that also, to be honest, we keep reviewing it. It is not adequate. Not adequate. Yeah, if we have to finish. By the way, you may like to know Yeah. that this stair takes you to the first floor. First floor. Yeah. And this mandap is not closing on the first floor. Will this have a height going up to the 3rd floor? This will go up to the 2nd floor. Okay. Yeah, so first floor and 2nd floor. But this gumbaj will come. What perhaps is not closing, and you rightly observed, here it will get closed in a manner, but what will not close and the height it will take this up to 2nd floor is on the Guru Mandap. So that is going to be fully up. Yeah. There's going to be no roof. Yeah, and because of that, the roof will be on the 2nd floor, 2nd floor. top floor. That's where the dome will be there. So that will be a full high ceiling area of the temple. And from there, the next is the support, the shikhar comes. Now you are actually last but one. After this, you will go to the sanctum sanctorum. Right. So what is this? This is also the 3rd mandap. Yeah, this is Guru Mandap. This is you Guru have Mandap. really entered Guru Mandap. Okay. And this looks really majestic. Yeah, and this will go up to another 2 stories, Right. 1st and 2nd floor. To ensure that the safety of the devotees, You've covered it. covered it, so that the work will go on Right. while the devotees will make Cross a from queue and go
to the. So this is going to be open, right? That's what I wanted to clarify. So from those from the Ultimately, first it will floor can look down. Yeah, first floor will be open. Second floor finally will be the roof. closed. So this is some marble floor work that is here. So clearly a lot of attention is Yes. being paid to the inlay work and the marble work that is on the floor of the temple as well. This is the exactly you will have the feel how the entire flooring will come, in which there will be this kind of a art design in the center. There will be border on the sides Okay. and the marble work. Here Yes. the two domes which will also be there. On the arms. left and the right. Yeah, the Prarthana and the Nritya Mandap. So Nitya Mandap, does it literally mean Nitya Mandap? Will there be Actually- ceremonies here? Not Nritya, but it will enable devotees to perform, but not in the sense of Nritya, Right. not in the sense of entertainment. Right. Yeah. But maybe a ceremony of Yeah, sorts. if there are ceremonies which trust would approve, Right. only that will be coming here. So, for the benefit of our viewers, 22 जनवरी 2024 तक ये ग्राउंड फ्लोर है. आप जितना कंप्लीट कर सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बाकी फ्लोर्स फिर बनते रहेंगे. 2 फ्लोर्स उसके ऊपर भी हैं. मेरे ख्याल से ऊपर राम दरबार भी बन रहा है एक फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकंड फ्लोर भी है, लेकिन उनका काम चलता रहेगा और जो शरणार्थी आएंगे, जो डेवोटीज आएंगे, उनको एंट्री मिलती रहेगी. बिल्कुल आपने अच्छा किया ये सफाई दे दी. लोगों को कुछ कंफ्यूजन सा होता है कि जो निर्माण है वो पूरा हो गया. जी. तो ये नहीं है, भूतल का निर्माण पूरा हो जाएगा. जी. फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का निर्माण और जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो भी बनता रहेगा. तो वो 2 फेज में है. पूरा मंदिर दिसंबर 2024 में हो जाएगा. अच्छा, तो वो भी बहुत पास लग रही है डेडलाइन सर. आपको लगता है आप कंप्लीट कर पाएंगे? क्योंकि कोशिश मैं जो है. देख रही हूँ जितना विशाल ये स्ट्रक्चर है, तो और जितना आप कॉम्प्लेक्स की बता रहे हैं, 70 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, आगे परकोटा है, पूरा परिक्रमा होगी, तो बहुत काम अभी बाकी. बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है वो दिसंबर 2025 में पूरा होगा. वो बनता रहेगा. हाँ, तो वो 3 चरण में इस कार्य को लिया गया था. अच्छा, जिसका कि आपने देखा. श्रद्धालु यहाँ तक आएगा जी. यहाँ से उसके भगवान के दर्शन होंगे. तो अब हम 3 मंडप पार करके यहाँ पर पहुँच गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह है. दिस इज द सैंक्टम सैंक्टोरियम एंड आई कैन ऑलरेडी सी दैट इट्स लुकिंग रियली ग्रैंड एंड फैसिनेटिंग बिकॉज दिस इज स्टोन टिल हियर, बट बियॉन्ड that is marble on the walls, yes, right? yes. So that is all white marble. संगमरमर का ये मार्बल है जो इंडिया का बहुत फेमस है. और मैं देख रही हूँ कि एक पेडेस्टल भी तैयार हो चुका है. जी. तो उस पेडेस्टल पे उस हाइट के बाद अब रामलला की मूर्ति लगेगी. बिल्कुल आपने सही गेस किया. ये वही स्थान है जो कि प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पे 5 अगस्त 2020 को एक शुभारंभ का पूजन किया था. जी. उसके बाद निर्माण कार्य हुआ. तो मैं ये देख रही हूँ मिश्रा जी की ये कुछ ऑक्टेगोनल टाइप शेप लग रही है. इसका कोई सिग्निफिकेंस होता है? ये जो गर्भगृह का जो डिजाइन है, इस पे क्या विचार हुआ था? विचार तो काफी हुआ कि स्क्वायर हो, ऑक्टेगोनल हो. अंत में श्रद्धालु को ध्यान में रखा गया. जी. एक और एक तरीके से 2 चैलेंजेस और थे. एक चैलेंज तो यह था कि वास्तु और नागर शैली में यह कहा जाता था कि ये जो पाठ है जो खुलेगा भगवान के दर्शन के लिए, यहाँ पर सोने के 2 द्वार लगेंगे. तो इसकी इतनी भी चौड़ाई वो बहुत समझते थे. अच्छा. हाँ, आप अगर ध्यान करें तो अधिकांश मंदिरों में जो छोटा होता है. जी. तो उनको इस पर आपत्ति थी कि ये आप बहुत लंबा कर रहे हैं. संभवतः 12 फीट है. और उसके बाद एक दूसरा चैलेंज था
कि इसको हम इस प्रकार से सपोर्ट दें कि स्टोन के वेट को ये सस्टेन कर सके। जी जी बिल्कुल। जो कि CBRI को देखना था, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो उन्होंने देखने के बाद यह अपनी स्वीकृति दी कि आप इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी सस्टेनेबिलिटी की। तो यहाँ पर ये कठिनाई थी। तो सर ये जो पूरा जो एक तरह से म्यूरल ही है, ये जो मार्बल में पूरा वो किया गया है, स्कल्प्ट किया गया है, तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी क्या? क्या डिपिक्ट करना था गर्भगृह की दीवारों पे? देखिए, इसमें अभी बहुत सारा काम है जी। इसके ऊपर आप अभी देख नहीं सकेंगी, वो विष्णु जी का है और वो एक तरीके से समुद्र मंथन जी की कहानी है, जिसमें हर एक फिर 9 ग्रहों को दिखाया जा रहा है। फिर यहाँ पर 2 द्वारपाल होंगे जिनका नाम जय और विजय होता है। अच्छा। वो यहाँ पर लगेंगे। अच्छा। और फिर साइड में हनुमान जी और गणेश जी की मूर्ति होगी। मैं देख रही हूँ ऊपर गणेश जी की मूर्ति ऑलरेडी लगाई गई है, जो बिल्कुल चौखट है गर्भगृह की, उसमें गणेश जी की मूर्ति लगाई है, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति होना बहुत जरूरी है। लेकिन साइड में लगभग 4 फीट के हनुमान जी लगेंगे और उसी प्रकार के गणेश जी लगेंगे। 1 सेकंड आपका और लूंगा। हाँ जी। ये जो स्थान है सात अवतार है, ये ब्रज ही है जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहां के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ भ्रमणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिगम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। आज ब्रज रज महोत्सव और संत मीराबाई जी की 525वीं जन्म जयंती समारोह के जरिए मुझे एक बार फिर ब्रज में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं दिव्य ब्रज के स्वामी भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूर्ण समर्पण भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मीराबाई जी के चरणों में भी नमन करते हुए ब्रज के सभी संतों को प्रणाम करता हूं। मैं सांसद बहन हेमा मालिनी जी का भी अभिनंदन करता हूं। वो सांसद तो है, लेकिन ब्रज में वो रम गई है। हेमा जी न केवल एक सांसद के रूप में ब्रज रस महोत्सव के आयोजन के लिए पूरी भावना से जुटी है, बल्कि खुद भी कृष्ण भक्ति में सरोबार यानी होकर प्रतिभा और प्रस्तुति से समारोह को और भव्य बनाने का काम करती। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए इस समारोह में आना एक और वजह से भी विशेष है। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है।
ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मीरा की भक्ति बिना वृंदावन के पूरी नहीं होती है। संत मीराबाई ने वृंदावन भक्ति से अभिभूत होकर कहा था, आलीरी मोहे, आलीरी मोहे लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। इसलिए जब गुजरात के लोगों को यूपी और राजस्थान में फैले ब्रज में आने का सौभाग्य मिलता है तो हम इसे द्वारकाधीश की ही कृपा मानते हैं। और मुझे तो मां गंगा ने बुलाया और फिर भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया, आपकी सेवा में लीन हो गया। मेरे परिवारजनों, मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव केवल एक संत का जन्मोत्सव नहीं है, ये भारत की एक संपूर्ण संस्कृति का उत्सव है। ये भारत की प्रेम परा का उत्सव है। ये उत्सव नर और नारायण में, जीव और शिव में, भक्त और भगवान में अभेद मानने वाले विचार का भी उत्सव है, जिसे कोई अद्वैत कहता है। आज इस महोत्सव में अभी मुझे संत मीराबाई के नाम पर स्मारक सिक्का और टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मीराबाई राजस्थान की उस वीर भूमि में जन्मी थी जिसने देश के सम्मान और संस्कृति के लिए असीम बलिदान दिए हैं। 84 कोस का ये ब्रजमंडल खुद भी यूपी और राजस्थान को जोड़कर बनता है। मीराबाई ने भक्ति और अध्यात्म की अमृत धारा बहाकर भारत की चेतना को सिंचा था। मीराबाई ने भक्ति, समर्पण और श्रद्धा को बहुत ही आसान भाषा, सहज रूप से समझाया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। उनकी श्रद्धा में आयोजित ये कार्यक्रम हमें भारत की भक्ति के साथ साथ भारत के शौर्य और बलिदान की भी याद दिलाता है। मीराबाई के परिवार ने और राजस्थान ने उस समय अपना सब कुछ झोंक दिया था। हमारी आस्था के केंद्रों की रक्षा के लिए राजस्थान और देश के लोग दीवार बनकर खड़े रहे ताकि भारत की आत्मा को, भारत की चेतना को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए आज का ये समारोह हमें मीराबाई की प्रेम परंपरा के साथ साथ उस पराक्रम की परंपरा की भी याद दिलाता है। और यही तो भारत की पहचान है। हम एक ही कृष्ण में बांसुरी बजाते कान्हा को भी देखते हैं और सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव के भी दर्शन करते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारा भारत हमेशा से नारी शक्ति का पूजन करने वाला देश रहा है। ये बात ब्रजवासियों से बेहतर और कौन समझ सकता है। यहां कन्हैया के नगर में भी लाडली सरकार की ही पहले चलती है। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ
राधे राधे कहकर ही होता है। कृष्ण के पहले भी जब राधा लगता है तब उनका नाम पूरा होता है। इसलिए हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा जिम्मेदारियां भी उठाई हैं और समाज का लगातार मार्गदर्शन भी किया है। मीराबाई जी इसका भी एक प्रखर उदाहरण रही है। मीराबाई जी ने कहा था, जेतई दिसई धरनी गगन बीच, तेता सब उठ जासी, इस देही का गर्व ना करना, माटी में मिल जासी। यानी तुझे इस धरती और आसमान के बीच जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका अंत एक दिन निश्चित है। इस बात में कितना बड़ा गंभीर दर्शन छिपा है, ये हम सभी समझ सकते हैं। साथियों, संत मीराबाई जी ने उस कालखंड में समाज को वो राह भी दिखाई जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारत के ऐसे मुश्किल समय में मीराबाई जैसी संत ने दिखाया कि नारी का आत्मबल पूरे संसार को दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने संत रविदास को अपना गुरु माना और खुलकर कहा भी, गुरु मिलिया संत गुरु राव रविदास जी, दीनी ज्ञान की गुटकी। इसलिए मीराबाई मध्यकाल की केवल एक महान महिला ही नहीं थी, बल्कि वो महान समाज सुधारकों और पथ प्रदर्शकों में से भी एक रही। साथियों, मीराबाई और उनके पद वो प्रकाश है जो हर युग में, हर काल में उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम आज वर्तमान काल की चुनौतियों को देखेंगे तो मीराबाई हमें रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने मूल्यों से जुड़े रहने की सीख देती है। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पै बलि जाए। उनकी भक्ति में सरलता है पर दृढ़ता भी है। वो किसी भी विघ्न से नहीं डरती है, वो सिर्फ अपना काम लगातार करने की प्रेरणा देती है। मेरे परिवारजनों, आज के इस अवसर पर मैं भारत भूमि की एक और विशेषता का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। ये भारत भूमि की अद्भुत क्षमता है कि जब जब उसकी चेतना पर प्रहार हुआ, जब जब उसकी चेतना कमजोर पड़ी, देश के किसी न किसी कोने में एक जागृत ऊर्जा पुंज ने भारत को दिशा दिखाने का लिए संकल्प भी लिया, पुरुषार्थ भी किया। और इस पुण्य कार्य के लिए कोई योद्धा बना तो कोई संत बना। भक्ति काल के हमारे संत इसका अप्रतिम उदाहरण है। उन्होंने वैराग्य और विरक्ति के प्रतिमान गढ़े और साथ ही हमारे भारत को भी गढ़ा। अब पूरे भारत को देखिए, दक्षिण में आलवार संत और नायनार संत थे, रामानुजाचार्य जैसे आचार्य थे। उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए। पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज,
और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रत क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। Co-powered by reach that entire debris. So yes, the next few hours are going to be interesting. But yes, the NDRF team since late last evening have been trying to cut through that steel pipes and steel rods that they have encountered. But yes, that is proven to be a big task, because you can imagine that it is just an 800 millimeter diameter pipe, and if you convert it to feet, is just 2.7 feet in diameter, and in that a person has to crawl through with machines and then go ahead and try to cut those heavy metal sheets. And as they are cutting it, there are fumes that comes out of it. There is fire that comes out of it, and hence you can imagine how challenging is this task at this point in time. And that is the reason why we are seeing that it has been almost 8 hours that this entire operation of cutting through that metal sheet is ongoing at this point in time. When will they get success? That is a big question mark. But yes, the rescuers are positive that by today they will be able
to make that final step and make sure that all these people are taken out at safety. Right, Anshul. Also, the nation is praying for the safety of the 41 workers, and we're right now getting you the latest visuals from Uttarkashi. Well, Anshul, if you could also shed some light on the major obstacles for the rescue teams right now. Yes, there are several major obstacles for the rescue team. As I mentioned that there is an 800 millimeter pipe, and you can imagine 2.7 feet in diameter, which is 2.7 feet in diameter, and in that person from the NDRF has to go inside that with hydraulic cutters and try to go ahead and cut through the heavy metal pipes that have been encountered by the rescuers at this point in time. So until and unless that is cut through, there is no way out for the workers at this point in time, because remember the other plans that were in place, the work on those plans had stopped because the rescuers felt that they have come very, very close to their destination, and hence the other plans were put on a temporary halt. Also, the kind of search activities that were happening because of the other plans, the blasts that were happening on the other end of the tunnel, or the leveling of surface that was happening on the vertical end of the tunnel, all that was stopped, and the work was ongoing from the Silkyara end of the tunnel, where it was being tried that people who are stuck inside, they could be taken out without any harm. So that is the biggest challenge at this point in time. The 4 to 5 metal sheets that has been encountered, this is proving to be an Herculean task for the rescuers who have been working round the clock 24/7 for the last 12 days, making sure that the mental health condition or the other conditions, physical health condition of the people remain intact. So yes, we are expecting that within the next few hours, this entire operation might come to an end as well. But yes, the next few sheets that are over here, these needs to be encountered at the earliest. All right, Anshul, please stay with us. Now, we'll just quickly walk you through the rescue plan that is underway in Uttarkashi to rescue the 41 stranded workers. Now, the workers are trapped at 260 meters inside the tunnel, and in the tunnel, the debris is up to 60 meters. So, the workers are at 260 meters inside the tunnel, and the debris is up to 60 meters. Whereas, if we talk about the buffer room that the workers have, that is almost 2 kilometers, and the horizontal drilling that is happening in Uttarkashi by the rescue teams, that is happening up to 40 meters. So these are the latest details as far as the rescue operations that are underway in Uttarkashi are concerned. And we have Anshul Singh with us from the ground. Anshul, also has any communication been established with the workers recently? So yes, communication has been established. We have been reporting on this for the last 2 days, and how communication has already been established, be it the video or the audio communication that has already been established. In fact, the doctors have also spoken to each and every person who is stuck inside, making sure that their mental and physical health remains intact, and that is a good thing that all of them are absolutely safe. Even if people had complained of anything, they have been given the requisite medicines as well. So yes, the situation inside the tunnel is absolutely safe. The people inside the tunnel are absolutely safe. There is constant communication that is happening. In fact, the communication has been happening from day one itself. We have been reporting from over here from the last 11 days that how communication channels have already been established. So yes, the only thing that is now left, we are in the last leg of this rescue operation, and we are expecting that within the next few hours we can get that breakthrough that we have been waiting to see for the last 11 days now. And now we get you the latest update from Uttarkashi, where the rescue operation is on. Now what we're learning is that 45 meter has been drilled through and 15 meter remains to be drilled to rescue the workers who are stranded inside the tunnel. Remember, 41 workers have been stranded since November 12th. And the rescue operation is on. The operation is in the final stage, and what we are learning is that 45 meter of the tunnel has been drilled through and 15 meter remains to be drilled. So in total 60 meter needed to be drilled, out of which 45 meter has already been drilled through.
Viewers, days after Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra opted to use words like panoti or bad omen to blame the Prime Minister's presence at the Cricket World Cup finals for India's loss, Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has followed suit.